I'm Amir Khan, and I did engineering from Ali Muslim University, mechanical engineering. I passed out in 2019, and since then I started preparation after passing out from college. And I gave my first attempt in 2020, the first COVID attempt, and I qualified. I have given three attempts. I qualified finally in my third attempt, and I qualified prelims in all my three attempts. And I appeared in interview in my second and third attempt. And then finally in third attempt I got rank 154. स्ट्रेटजी जो एक बहुत लेट रियलाइजेशन हमें हुआ, जो बहुत एक लेट रियलाइजेशन लर्निंग थी, लेट लर्निंग थी. इट वाज दैट यू नीड टू हैव अ गाइड, someone who can tell you ins and outs of this preparation, which I did not have, and I did it mostly on my own. And so I made a couple of mistakes, like for example, I did not refer to PYQs at all in my first two attempts. My understanding of syllabus was also very superficial. So, for a proper strategy, you need to have a very good hang of the syllabus and PYQs. You start with uh, uh, going through the syllabus multiple times, and then through PYQs of both prelims and mains to orient your preparation about whatever you study. For example, in terms of sources, in terms of sources, I did not follow anything very out of the box. All the sources I followed were tried and tested, which everyone else follows. For example, Lakshmikant for polity, Spectrum for modern history, NCRTs for geography and ancient history, Nitin Singhania, Murnal's economy notes, and all that stuff. So I did not go through any very unique sources. I restricted myself to the limited sources which almost all toppers prescribe. I did a lot of answer writing practice. In the first version, the mistake I made was I did not refer to PYQs at all. I only relied on coaching tests. I did answer writing practice of those. Uh, but I had some fundamental flaws in my answer writing, such as my handwriting was not very legible. So in my third attempt, I had to work on that also. Then I tried to uh, formulate standard templates of introduction and conclusion, which I used in my final mains answers. I also tried to create a framework and skeleton of the uh, answers of different types of questions. For example, अगर art and culture में question है तो even if I would either have a set template for introduction, or even if I do not have that, I would have a proper structure in my mind on along the lines on which I would think about the introduction. For example, अगर वो नगर आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन है, तो या तो आप नगर आर्किटेक्चर को वैसे डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसको इन माय माइंड आई हैड क्रिएटेड दिस फ्रेमवर्क कि ऐसा अगर क्वेश्चन है तो आई वुड डिस्क्राइब इट्स इवोल्यूशन, कि नगर आर्किटेक्चर की इवोल्यूशन कैसे हुआ. तो ऐसे सारे टॉपिक्स का आई हैड सम pre-formulated structure about introduction, about the body, कि किस क्वेश्चन में डायग्राम्स का स्कोप है, किस क्वेश्चन में मैप का स्कोप है. So all these I had done in my preparation stage only. I did not, for example, in my first two attempts, I tried to keep the answers very organic. कि बहुत ज़्यादा अगर ऐसे स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे बहुत हर चीज़ बहुत ऑर्गेनिक आंसर्स नहीं आ पाएंगे. तो विच एक्चुअली डिड नॉट पे मी वेरी वेल. तो इसलिए फिर थर्ड अटेम्प्ट में आई ट्राई टू मेक इट वेरी स्ट्रक्चर्ड. So even if the answers are not organic, they would be right to the point and they would meet the demand of the question. So that's what I try to do. ऐसे पीवाईक्यू से आपको ये आइडिया लग जाएगा यूपीएससी किस टाइप के ऐसे पूछता है यूजुअली. लेकिन उसमें भी आपको एकदम ऐसे ऐसे तो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ओपन टू इंटरप्रिटेशन रहता है, ओपन एंडेड होता है उसका. टॉपिक्स भी कभी रैंडम कुछ पूछ लिया जाता है, और उसमें आपको हर जो भी लोग क्वालिफाई करते हैं, हर किसी का अलग स्टाइल होता है ऐसे लिखने का. तो उसमें ऐसे में तो कोई ऐसा फिक्स तरीका नहीं है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन आपको जब ऐसे लिखते हैं तो you have to make sure of two things, that the essay is very comprehensive, very holistic, and the essay is also very rich in terms of content. तो आप उसमें अपना जीएस जो पढ़ा होता है आप उसका कंटेंट यूज कर सकते हैं. फॉर मी आई रीड अ लॉट.
एंड आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज। तो हम उसके रेफरेंसेस ऐसे हम यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल कोई बुक पढ़ी है तो अगर फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन है तो एक मूवी है वॉच वैग द डॉग करके, उसका रेफरेंस दे दिया। सो आई गेव अ लॉट ऑफ पॉप कल्चर रेफरेंस, लॉट ऑफ लिटरेचर रेफरेंस, लॉट ऑफ नॉन फिक्शन एंड फिक्शन रेफरेंसेस। तो दिस वाज फॉर हाउ इट वेंट फॉर मी। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो लोग अपना जीएस के जो नोट्स होते हैं उसका रेफरेंस दे सकते हैं, उससे अपने एसेस को एनरिच कर सकते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट द एसे इज नॉट वेरी very bland, very superficial. It has to have some depth, and it has to have, or it also has to be horizontally very expansive. It has to cover a lot of dimensions. UPSC declares that the paper are general studies. तो ऐसे क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछेंगे कि जो ऑप्शनल पे ज़्यादा बेस्ड होंगे या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रेटिंग योर एसेज। आप उस एसे का टॉपिक कितना भी ऑब्स्ट्यूज हो, आप उसको इंटरप्रेट करके अपने जीएस के फोल्ड में ले आएंगे, और उसके हिसाब से आप, अब देखिए मकसद क्या होता है ऐसे लिखने का, यू हैव टू अंडर शो द एग्जामिनर दैट यू अंडरस्टूड टॉपिक, व्हाट द टॉपिक is trying to elicit from you, and then you have to justify your understanding through a lot of arguments, right? तो अगर फिलोसॉफिकल टॉपिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटेंट भी फिलोसॉफिकल ही डालना है उसमें। वो यूपीएससी कहीं ऐसे रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिटली नहीं लिखता है। वो आपके ऊपर है कि आप उसका टॉपिक आप अंडरस्टैंड समझ लें, उसके बाद आप उसको सब्सटेंशिएट कैसे भी कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बस सही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि फिलोसॉफिकल ऐसे है तो आपको उसमें फिलोसॉफिकल ऐसे, टॉपिक फिलोसॉफिकल है तो आपको उसमें ऐसे भी फिलोसॉफिकल लिखना है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे अपना जी से रिलेटेड लिख सकते हैं या आप अपना टेक्निकल भी लिख सकते हैं उसको। वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। फिजिक्स में माय अंडरस्टैंडिंग इज कि उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बस आप जो उसमें सिलेबस में टर्म्स दिए होते हैं आप उनकी डेफिनेशंस याद कर लीजिए। और जैसे एथिक्स के जो 5 कंपोनेंट होते हैं, एप्टीट्यूड के जो कैब कंपोनेंट होते हैं, वो सब आप थोड़ा बहुत स्टैटिक पढ़ लीजिए। उससे कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, बाकी जनरल उसमें एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो इट यू विल गेट मोस्ट हेल्प फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एथिक्स आंसर्स। आप जितनी ज़्यादा, आप 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद से 2023-11 साल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे भी नहीं। तो अगर आप उसमें 50-60% क्वेश्चन लिख लेते हैं और बाकी आप उसमें ब्रेन स्टॉर्म कर लेते हैं, तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऐसे आंसर राइटिंग। एक तो सेल्फ इवेल्युएशन होता है कि आपने आंसर लिखा, उसके बाद आपके पास आपको खुद पता होता है कि आपने क्या क्या पढ़ा है, और आपने जितना पढ़ा है उस टॉपिक में से उतना आप कितना उस आंसर में यूज कर पाए हैं। तो जो आप आंसर दोबारा पढ़ेंगे तो, क्योंकि आप जब जल्दी में लिखते हैं, टाइम बाउंड मैनर में लिखते हैं, तो यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम टू थिंक ऑन योर फीट वाइल राइटिंग द आंसर। उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता, उस टाइम पे जो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आ रहा होता है, यू आर राइटिंग दैट ओनली। तो आप उसको सेल्फ इवेल्युएट करें उसको, और अपना टाइम लेके उसमें आप ये सोचें कि जो आपके पास अभी कंटेंट है, जो मटेरियल है, उसमें से ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इस आंसर में आप लिख सकते थे जो आपने नहीं लिखी हैं, और ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपने इसमें जल्दबाजी में लिख दी हैं बट दे वर नॉट रिलेवेंट टू दिस क्वेश्चन। तो आप उस आंसर को दोबारा वहां पे जो आप मार्जिन में आप ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो आपने एक्स्ट्रा लिखा उसको काट दीजिए, और जो आपके नोट्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपने नहीं लिखी आप उसको ऐड कर दीजिए वहां पे। क्योंकि यूपीएससी में थीम्स रिपीट होती हैं, क्योंकि सिलेबस ऑब्वियसली सेम रहता है। तो पंचायती राज पे क्वेश्चन है, तो जो आपको कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल केस स्टडीज वगैरह, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप सेम कंटेंट यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं। दूसरा पीयर इवेल्युएशन कर सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप आंसर राइटिंग करें, फॉर एग्जांपल आई वाज एट जामिया आरसीए व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर माय थर्ड अटेम्प्ट। यहाँ पे आई यूज्ड टू डू आंसर राइटिंग विद अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स। तो हम लोग एक दूसरे के आंसर इवेल्युएट कर देते थे, और उससे हम लोग काफ़ी कुछ सीखते थे। आप ये कर सकते हैं, या फिर अगर ये भी नहीं हो तो अगर आप किसी कोचिंग वगैरह से एसोसिएटेड हैं तो आप किसी फैकल्टी मेंबर से भी हेल्प ले सकते हैं उसके इवैल्यूएशन में। देखिए यूपीएससी का पैरामीटर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होता होगा, ऑल्दो वो आई डोंट थिंक कि बाहर किसी को पता होगा। सब वी कैन ओनली मेक कंजेक्चर्स फ्रॉम लुकिंग एट कॉपीज ऑफ डिफरेंट टॉपर्स। तो उसमें ये रहता है कि एक तो क्वेश्चन की डिमांड एग्जैक्टली एड्रेस होनी चाहिए। आपने बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन वो बीटिंग अराउंड द बुश है, वो डायरेक्टली एकदम कंसाइसली बुल हिट नहीं कर रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी जैसे कोचिंग की इवेल्यूएशन में क्या होता है कि वो यू कैन कंफाउंड देम विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता, दे आर प्रोफेसर, दे आर वेरी एक्सपीरियंस इन देयर सब्जेक्ट्स।
तो जो क्वेश्चन पूछा है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसी क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है। दूसरा, ऑब्वियसली जो बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं वो ये है कि आपकी कॉपी इफ नॉट प्रेजेंटेबल एटलीस्ट इट शुड बी लेजिबल, कि पढ़ने में आनी चाहिए। अगर कुछ भी आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा लेकिन एग्जामिनर को पढ़ने में नहीं आ रहा तो उसके नंबर नहीं देगा, एंड आई डोंट थिंक वो इवन चेक भी करेगा। वो उसके सामने कॉपी आएगी, वो नहीं पढ़ पा रहा तो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा उसको काट के, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं होता। वो ये सोच के नहीं बैठते कि आज का चौथा अटेम्प्ट है, पांचवा अटेम्प्ट है, उसने इतनी मेहनत की हुई तो मैं थोड़ा टाइम लगा के उसको पढ़ लूँ, नहीं। उनके पास बहुत सारी कॉपीज होती होंगी, तो जितनी आसानी से आप कॉपी पढ़ पाएंगे उतने उतना आपको फायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि एक तो आप अपना टू टू द पॉइंट आंसर लिखें, बहुत ज़्यादा फैफिंग ब्लफिंग ना करें, और दूसरा आपकी कॉपी देखने में अगर सुंदर ना भी हो तो पढ़ने में तो आनी ही चाहिए पूरी की पूरी। हाँ, सेल्फ असेसमेंट बुकलेट हेल्प करती है आपको, क्योंकि उससे आप मतलब यू आर एबल टू कीप अ ट्रैक ऑन योर ओन प्रिपरेशन। अपनी परफॉर्मेंस को आप पीरियोडिकली रिव्यू कर सकते हैं कि आपकी जो मतलब एंड गोल है उसकी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो आपके जो अचीवमेंट्स है वो मीनिंगफुल है या नहीं, वो आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिर्फ और मतलब पीरियोडिकल रिव्यू कोर्स करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन में, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो यू स्टार्ट विद ब्लैंक स्लेट। फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, जो आपके प्री कंसीव्ड कुछ आइडियाज होते हैं वो आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे नहीं हो पाएगा, कुछ और चीज़ें करनी होंगी जो आप पहले नहीं कर रहे होते हैं, वो आप उसको ऐड ऑन करते हैं। इसमें आपको सेल्फ असेसमेंट बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बल्कि। देखिए, दो तरीके होते हैं इवैल्यूएशन के। एक, आप अपने आंसर को अभी सबमिट कर देंगे और एग्जामिनर आपको जो भी इवेलुएट कर रहा है चेक करके दे देगा, और दूसरा फेस टू फेस रिव्यू मिल जाए। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि जो कॉपी आपको चेक करके मिलती है वो कॉपी चेक करते हैं वही लोग जो खुद भी एग्जाम लिख रहे होते हैं, उनके दो तीन अटेम्प्ट हो चुके होते हैं, फिर वो पार्ट टाइम जॉब के लिए कर रहे होते हैं ये काम। तो उसमें उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आपको मिनिमम इससे ज़्यादा कम मार्क्स नहीं देने हैं या इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देने हैं आपको। उसमें वो लोग बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे गलत इंफेसिस रहता है उनका, कि एक उनके दिमाग में ये रहता है, उनको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन पे इतने नंबर देने हैं, कंक्लूजन पे इतने नंबर देने हैं, जबकि यूपीएससी में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कि यूपीएससी ने कभी ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं किया कि आपको इसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है। लेकिन जब आप फेस टू फेस रिव्यू आपका हो रहा होता है तो ये सारी उसमें बाउंड्रीज नहीं होती हैं, तो आपको एक बहुत ज़्यादा फ्री और बहुत ज़्यादा जेन्युइन रिव्यू मिलता है। वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपको आंसर पढ़ के आपको बता दिया है कि हाँ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक जो होता है ना कि जो एक उनको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे दिया जाता है, तो उससे बाहर जाके आपको चीज़ें समझने को मिलती हैं जब आप फेस टू फेस रिव्यू होता है, आपका फेस टू फेस फीडबैक होता है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए मतलब कोई भी हो, अगर आपका पीयर इवेल्युएशन भी हो रहा है या आप खुद भी इवेल्युएट करें, तो खुद तो आप ऑब्वियसली फेस टू फेस ही करेंगे, लेकिन पीयर इवेल्युएशन या टीचर के साथ इवेल्युएशन हो रहा है तो आदर टॉक टू देम ऑन फोन और मीट देम और सम अदर वे, बट लाइक कीप योर आंसर इन फ्रंट ऑफ देम एंड देन आस्क देम कि इसमें कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, इसमें क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें। एडिशनल टिप्स तो यही है कि बहुत ज़्यादा घबराना नहीं होता इसमें, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाती है कभी कभी जर्नी। आई स्टार्टेड इन 2019 एंड फाइनली क्वालिफाइड इन 2022 विच वाज 3 इयर्स। तो और मतलब जब आप स्टार्ट करते प्रिपरेशन, यू आर ऑलवेज सो कॉन्फिडेंट कि तो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल ही जाएगा, फिर नहीं होता। तो एक तो मेंटल फैक्टर जो इसमें होता है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं, तो उससे आपको अपने आप को उबारना होता है, ओवरकम करना होता है। उसके लिए यू कैन ऑलवेज रिफर टू द एग्जांपल्स ऑफ प्रीवियस टॉपर्स हु हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन इन आफ्टर सो मेनी अटेम्प्ट्स बट दे नेवर गिव अप। और दूसरा ये भी होता है कि जितने आप मतलब यू नॉट गेट बॉग्ड बाय द मार्केट अराउंड यू। कोचिंग के जो कोचिंग कल्चर है उसकी वजह से इतना सारा मटेरियल अवेलेबल मार्केट में कि आप समझ नहीं पाते आपको क्या पढ़ना है, क्या और क्या और क्या नहीं पढ़ना। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि डू नॉट बाई एवरीथिंग दैट समवन हु हैज क्वालिफाइड यूपीएससी सेज। क्योंकि क्वाली एग्जाम जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बिल्कुल दूसरा फ्रेम ऑफ माइंड होता है। वंस यू क्वालिफाई एग्जामिनेशन आप एकदम दूसरे फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, तो उस टाइम पे आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं विच कुड बी मिसलीडिंग टू अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स। तो आप जब भी किसी को भी सुने, कोई भी जिसने क्वालिफाई किया या कोई आपको पढ़ा रहा है, कोचिंग का टीचर है, तो ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड आई ऑलवेज से दिस दैट यूज योर विजडम। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आई एम अज्यूमिंग दैट you have done graduation, and if you have done graduation you also passed 12th class, and you have passed 12th class you have also passed high school। इसका मतलब ये नहीं, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप जीरो पे हैं, आप की लाइफ में अचीवमेंट्स हैं। सो डू नॉट टोटली डिपेंड ऑन समवन, use your intellect, use your wisdom
to sift every guidance, every instruction that you get. तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए. Do not get bogged by material around you, and do not buy everything that has been sold to you. Be mature in this preparation is what I'm trying to say.